राज्यसभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू में देश के नागरिकों की भागीदारी की सराहना की है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से लॉकडाउन की स्थिति में सहयोग की अपील की। सदन में मौजूद सदस्यों ने भी मेज थपथपाकर अपना समर्थन जताया। Honorable members, it is expected of this August House to take note of major national issues and related developments and place on record its views on the same for record and for posterity. The panic outbreak of the dreaded coronavirus across the globe and the efforts being made to contain its spread is a major contemporary issue which the House need to take note of. The efforts of the central and state governments and the people of our country are particularly noteworthy. Yesterday was a super Sunday for our country. The voluntary curfew observed by the people of our country for 14 hours yesterday to contain the spread of this virus was unprecedented and heartwarming. The people of our country rose in unison to the call of national duty in this hour of crisis. This extraordinary response of the people was a clear demonstration of the collective resolve of the nation to address this formidable challenge. It was also heartening that a sense of gratitude and appreciation for the doctors, nurses, technicians, media, and all others who are in the forefront of the fight against the virus resonated across the country at 5 p.m. yesterday. This House takes note of this positive response and also the need to keep focused on concrete actions and keeping this spirit alive as we brace ourselves for the challenges ahead in the coming weeks. The central and state governments are doing their best to tide over the challenge. Several restrictions on the movement of the people are being imposed. This may certainly cause some inconvenience to the people, but extraordinary situations warrant extreme measures. It is important that we are agile and proactive, that we are responsible and responsive. It is critical that we respect the directions and follow them scrupulously. This House urges the people to bear with such restrictions and cooperate as they had done yesterday. The House records its appreciation of the overwhelming response of the people of the country to the call given by the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, for Janata Curfew yesterday and urge them to be guided by the same spirit till the war on coronavirus is finally won. The House also appreciates the central and state governments, various agencies, for their timely and effective interventions. This House also expressed the hope that collectively we shall overcome this huge challenge in the coming weeks. Honorable members may convey their feelings and appreciation of all concerned by thumping the dust, showing our solidarity. लोकसभा में भी जनता कर्फ्यू में लोगों की भागीदारी की सराहना की गई और सांसदों ने सदन में खड़े होकर ताली बजाई और इस वायरस से निपटने से में जो स्वास्थ्य कर्मी जुड़े हैं, डॉक्टर जुड़े हैं, उनका हौसला बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से भी कोरोना वायरस से निपटने में लोगों को जागरूक करने और सहयोग की सलाह दी। मैं चाहूंगा एक माननीय सदस्यगण, कल का एक ऐसा स्मरणीय दिन था जब देश में न कोई राजनीतिक मतभेद था, न कोई मत भिन्नता थी, न कोई पंथ, न कोई संप्रदाय, न कोई अमीर था, न कोई गरीब था। सारा हिंदुस्तान एक था। कल शाम को 5 बजे हम सबने जो देखा वो भारत की आत्मा थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक प्रयासों से संपूर्ण देश एकजुट था। उनके आह्वान पर ये देश इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट दिखा। संपूर्ण देश ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों, एयरपोर्ट के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया ने जिस तरीके की सेवाएं प्रदान की, उसके लिए हम सब उनका अभिवादन करते हैं। हमने ये भी देखा कि माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी ने
ताली बजा के कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे सदन के नेता, कांग्रेस सदन के नेता अधीर रंजन जी की पुत्री हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तालियां बजाकर और इस प्रयासों की सभी लोगों ने उन महान कर्मियों के लिए सम्मानित होने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं चाहूंगा कि सदन एक बार खड़ा होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करे। कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस महामारी की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं, हम सब यहां से अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि सब केंद्र और राज्य सरकार, जिला परिषद प्रशासन के कानूनों को अक्षर पालन करें, स्वयं अनुशासित होकर हम पालन करें और इन नियमों को कठोरता पालन करने में जनता का सहयोग भी करें, क्योंकि इस महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। हमें अपने पास किसी प्रकार की नकारात्मक माहौल न बने, सकारात्मक रहकर हम इस चुनौती का सामना एक परिवार के रूप में कर सकते हैं। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बीमारी का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। प्रधानमंत्री लगातार कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने 3 चीजों की अहमियत जनता को बताने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #StayAtHome को प्रमोट करने के लिए जागरूक करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रमोट करे। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को बताए कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की और कोरोना से लड़ाई में सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए कोविड-19 आपातकालीन कोष में योगदान के लिए आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को धन्यवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस कोष में योगदान के लिए भूटान और नेपाल का भी शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन कोष का प्रस्ताव रखा था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों में भी लॉकडाउन की स्थिति जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने यह जानकारी दी है। भारत में कोरोना वायरस से होने वाले कोविड-19 रोग से पीड़ित अब तक कुल 433 लोग सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। 23 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अभी देश भर में एक्टिव केसों की जो बात है वो फिलहाल 402 है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। हरियाणा ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शेष 15 जिलों में भी 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की। उन्होंने इसमें 5 लाख रुपए का योगदान दिया है। सभी विधायकों ने भी अपनी 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया। तमिलनाडु में भी 24 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च तक धारा 144 की घोषणा की गई है। बिहार में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है। यह लॉकडाउन 31 मार्च तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब और महाराष्ट्र ने कर्फ्यू लागू कर दिया है।
कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार लगातार बड़े और अहम कदम उठा रही है। सरकार ने ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को पहले ही बंद कर दिया था। अब इसके बाद देश में सभी कमर्शियल उड़ानें 24 मार्च की मध्यरात्रि से बंद होंगी। हालांकि कार्गो विमान सेवा जारी रहेगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच लोगों के घरों से बाहर निकलने की खबरों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कितना बड़ा कदम लोगों के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर लड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लोगों के सहयोग की जरूरत है। अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ। हो सकता है आपके कुछ बहुत जरूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कोरोना ना हो, और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 15,000 के पार हो गया, जिसमें यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा 9,197 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण से हुई है। यूरोप में हालत बेहद खराब है। यूरोप कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बन चुका है, जहां पर इस संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा जाने गई। कोरोना संक्रमण की मार इटली में सबसे ज्यादा पड़ी है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा 5,476 मौतें हुई। इटली में रविवार को 651 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामलों में इटली दुनिया में करीब 5500 मौतों के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि इटली में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को हुई 793 मौतों के मुकाबले रविवार को कम लोगों की जान गई। वहीं कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 10.4% से बढ़कर 59,138 तक पहुंच गया। चीन का स्थान दूसरे नंबर पर है, जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले दुनिया में सामने आया था। चीन में अब तक 3,270 जान जा चुकी है। चीन में संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो 81,093 है। वहीं स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यानी कि आज ये पुष्टि की कि पिछले 24 घंटों में 462 लोगों की मौत के बाद स्पेन में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,182 पहुंच गया। स्पेन में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 33,089 हो गई है, जो चीन और इटली के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के चलते ईरान के हालात में भी कोई सुधार नहीं है। ईरान में आज कोरोना संक्रमित 127 लोगों की मौत है, जिसके बाद ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,812 हो गया। अमेरिका भी महामारी घोषित कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में आता दिखाई दे रहा है। अमेरिका में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34,000 के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका में स्वास्थ्य आपातकाल लागू है। अमेरिका में यह हाल तब है जब वहां पर हर 3 में से 1 शख्स को घर में रहने की सलाह दी गई है। संक्रमित होने वाले लोगों में अमेरिकन सीनेटर रैंड पॉल भी शामिल हैं। और इधर पड़ोसी देश नेपाल ने आज से अगले 1 हफ्ते तक भारत और चीन से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया है, ताकि कोरोना वायरस से संभावित संक्रमण को रोका जा सके। वहीं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो तादाद है वो बढ़कर 799 हो गई है।